دغه بیا د فرعون ولا کسی رغلله تو پکې تبشه احرام مصر جوړ دی درې دوا غټ غټ و دوا بڑی کی ایسے دا قدیم مصر میں بادشاہ کا لقب فرعون تھا په قدیم مصر سے د بادشاہ والا لقب چې وہ آغا فرعون وہ خود کو دیوتا سمجھتے تھے ایغ خپل ځون خدای ګڼو ریا پر ظلم کرتے اور ان کی بات نہ مانتا پخپل ریا بندے وے پخپل چچا بندے وے حکومت کو ریا ایغ توی پیغ ریا بندے وے ایغ خپل خبره منلا اور ظلم وے پکاو اسے سخت سزائیں دیتے ایغ توی سخت سزوئے ورکاولے فرعون مرنے سے پہلے اپنے لیے مقبرہ بنواتے تھے جسے دنیا احرام کے نام سے جانتی ہے فرعون خپل مرګ نمخ شوی ځون ته یوه مقبره جوړوله هغه ته احرام وی احرام په نوم باندې خلق پیژني مصر کی تاریخ میں ایک فرعون خوفو تھا مصر په تاریخ سے یو فرعون چود ایغ نوم خوفو وہ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا آغا په شل کولشه ننا بادشاہ جوړ شو اس کے 9 بیٹے اور 16 بیٹیاں تھی د ایک ولا نہ زمن و شپوڑ اسلینا وے اس نے اپنے لیے جو احرام بنوایا وہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے ایک چخپل زون د پورا کم احرام جوڑ کړاو آغا په دنیا سے د 7 عجائبات سے شمار کیجی یہ احرام قاہرہ میں ہے اور دنیا کا واحد عجوبہ ہے جو تقریباً 4,500 سال گزرنے کے باوجود اصل حالت میں قائم ہے دغه احرام په قاهره شدا او دا د دنیا اولینای یو یغدم عجوبه دا چې سلرنیم زرا کولینه په 13 شلل دای بیا خپل اصلی حالت سے موجود دا فرعون خوفو کا عقیدہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور احرام کی سیڑھیاں چڑھ کر جنت میں جائے گا د فرعون خوفو ولا دغه عقیده وا چې هغه چې مرشي به بیا ژوندی شي او د احرام شي چې کیمې پړی جوړې شوې دي پیغه بندې ودای چیږي او جنت ته ګډ شي بادشاہ کی لاش احرام کے خفیہ کمرے میں رکھی جاتی تھی اے بادشاہ والا جسم چو مړ جسم چو هغه په یغه پټه کټه شوی ژدو شو پټه کټه شوی هغه ژدو شو پیشله د بادشاہ والا مړ جسم چو هغه په پټه کټه شه ژدو شو ظلم یہ تھا کہ ساتھ میں زندہ غلاموں اور باورچی اور کنیزوں کو بند کر کے باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا جاتا تھا اوہو یو ظلم ودا کو پجمدی خال کے بندے چه بادشاہ دے پوراوے غلامون اور خدمتگارون اور باورچی کنیزه دغه ویا اغه کټیش ور سره بان کړلې او اغه د پراوې د وتل اغه کټینه وتل یار و بان کړلا اندر ان کا کیا حشر ہوتا اللہ جانتا ہے ننا پیغه کټیش و د اغه سحال جوړ شوی دغه خو الله ته پتا دو فرعون کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد وہ اٹھے تو غلام اور کنیزے خدمت کے لیے موجود ہو اے فرعونوں نے دغه خواهش و چې دی چې مرشي او به بیا ژوندیږي چې به دی ته خدمتګارون موجود وي او کنیزے یہ موجود وي احرام کے اندر بڑے بڑے ڈبوں میں ہیرے جوہرات اور خوبصورت نقش و نگار والے زیورات ملے ہیں احرام شننا چکم ڈبی پہ اغشے ہیرے اور جوہرات اور کشلی نقوش والا کولی زیورات کولی اتوی زیورات تا کولی ملو شوی دی چخال کے پیرے کاول یعنی جو پہنتے تھے ان میں خالص سونے کے ہار
कमरबंद, चूड़ियाँ, बालियाँ और अंगूठियाँ हैं। तो एक कुलिये शे खालिस दिसरे ज़रे वोला सरे ज़रे वोला कमरबंद पमले बंदे ताड़ले वोला पटे चूड़ियाँ सीली और बालियाँ और डीडे और अंगूठियाँ और गुतिये इस तरह के नक्श व निगार किसी और तहजीब के जेवरात में नहीं मिले। एदा से नकुश वो यगो वाला नक्शे वाला या गुलोने वाला दा से कोली चेदी चेरे बल तहजीब से चेरे नदी मिलाव शवी। इसके अलावा बर्तन, दूध, मक्खन, रोटी, अनाज, सब्जियां, हथियार एदगे ना अलावा कोली पिए और कुचकी और माड़िए मक्खन कुचकी रोटी माड़िए अनाज गनम सब्जियां सब्जी और हथियार और ये हथियार तस्वी पश्ते से हथियार हथियार तस असला 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 मछली अंडे तज़य्युन वाराइश और बनाव सिंगार काबोन ये और देख शुलवोली दे पोरा आराइश और बनाव सिंगार बोला लका मेकअप बोला शाइना का सामान शामिल है। दर टोल शाइना पशे शामिल भी एहराम से मिला दा टोल एहराम ना मिंदल शवी दी आसारे कदीमा वलवे खाल के वे उबसली। एक फिरौन के एहराम से 5000 नवदरात मिले। देवु फिरौन दे एहराम ना 15,000 रसा नवदरात मिला शवी दी। यानी वो हर वो एहराम को मुर्दा बादशाह के लिए शाही महल की तरह सजाते थे। यानी दी वे आगा एहराम चे वो एक मर बादशाह दे पोरा वेदे महल गुंदे आराइश को सजाव को वो तकशुला को वे फिरौन खूफू के एहराम से कश्ती भी मिली। फिरौन दे खूफू दे एहराम ना इवा कश्तियाँ मिला शवीद। इसका ख्याल था कि जिंदा होने के बाद कश्ती में सफ़र करेगा। दगा दा ख्यालू चिदा चमदाइशी कश्ती से सफ़र कई। बच्चों हजारों साल गुजरने के बाद भी मिस्र का एहरामों में फिरौनों की लाशें मौजूद है। मशमों ने ज़रावे कोलिना तिरशवी दी एक नबाद याप मिस्र से एहरामे से चेदे फिरौनों ने बोला मड़ जिस्मीना प्रोतोदी आगा ऐसा प्रोतोदी वो जिस्म को हनूत कारी के ज़रिए महफूज करते थे। एक वे आगा जिस्मीना पो हनूत कारी बंदे वे महफूज कौल हनूत वे कौल और अदा से वे आगा जिस्मीना महफूज करल। हनूत शुदा लाश को मम्मी कहते हैं। चिकिम लाश बंदे यकिम जिस्म बंदे हनूत के जी एक मम्मी भी यही। हनूत वो अमल है जिसमें पेट चाक करके दिल के अलावा आंते जिगर मैदा फेफड़े और दिमाग निकालकर जिस्म को धोया जाता। हनूत दा से अमलदा चे नास वे प्रेक वो दे एग नवे कुल में और नेरा शाइना फेफड़े वो शाइना वे रुबसल दिमाग वे उबसल और जड़ वे पोतिक और दगा शाइना वे चे रुबसल बेवे जिस्म उविंज। फिर अंदर बाहर मसाले और नतरून नमक लगाकर खुश करने रख देते थे ताकि जिस्म जरासीम लगने से महफूज रहे। ब्यावे नना प एगशे मिसाले और नतरून नोम दाए मोलगे दागवे पशे उलागावले और बुचावले दे परावे आगा जिस्म शेष दऊ महफूज कावले दे परा लका सरंगे मिजा बेटिए वो चावी मोलगा पबंदे उला गई लिया मिजे खजीर खुशक्कावी लिया मिजा अंगिरोन वो चावी दा से वे दिए आगा यग सना मिजी जिस्मी ना वो चावल मसाले में लहसुन और इसका तेल शामिल था। तो मिसाले से ईशा वो दे एक तेल वाला एक तेल भी शामिल हो। इसके बाद लाश की नाक कान मुंह और जहाँ से पेट खोलता था इसे मोम से बंद करके सूती कपड़े की पट्टियों में लपेटते और ताबूत के में बंद कर देते। एक ना बादा वे
پیزې او غوږې او خولې شه او چې کوم ځای و خلاص وو هغه شوی موم ډک کړل موم وی ډک کړل به وی په سوتی یعنی سوتی کپڑے پټي و جوړ کړل او هغه بندې وی ټول جسم اونو غړ په جسم بندې وی هغه پټي اونو غشتل او به وی تابوت شه باندھ مصر के लोगों का ख्याल था कि फिरौन देवता है مصر ولا د خال کې ټول د خیال وو چې فرعون چې دا هغه دیوتا یعنی خدای دا इनकी जिल्द सोने और हड्डियां चांदी से बनी है ए दिए वाला सरमन چې دو هغه د سره زاره دو وډی کی د سپین زاره نه جوړ دی एक फिरौन के मकबरे से ऐसा ताबूत मिला जिसमें एक के अंदर एक 3 ताबूत थे د یو فرعون د مقبره نه یو داسې تابوت ملاو شو چې هغه شی یو تابوت شننه بل تابوت او بل تابوت شننه بل تابوت د درې تابوت نه وی सबसे अंदर वाला ताबूत जो खालिस सोने का था चटोल शनना ताबूत जो आगा दसरे ज़रे वाला वो इसमें फिरौन की लाश थी पर एक शद फिरौन वाला जिसम प्रेत वो मर्द ताबूत का वजन 110 किलो था ए ताबूत वाला वजन जो दे एक वाला योसल लास किलो आज के हिसाब से इसमें इस्तेमाल की गई सोने की कीमत तकरीबन 1 अरब 21 करोड़ बनती है द चिकिम वक्त बंदी द किसी लिखली शो ये दो एक हिसाब लगाओ लदा छे पदग ज़माने शे द एक सरे ज़ारे कीमत 1 अरब यो अरब 21 करोड़ रुपए बनती है यो अरब और यो 20 करोड़ जोड़ेगी इसको बिनेरा ज़्योत्रोई पदा چې دا کسی چې لیکل شوی دو په دغه وخت شه د سره زره قیمت په زرا وشو اس په لکا وشه دا फिरौन की मम्मी को ताबूत में रखने के बाद इसके मुंह पर सोने का मास्क रखा जाता था ए फिरौनों ने वाला लाश चेउल या मर जिसम चेउ आवे च ताबूत शजदो बेबे दे एक प मख बंदे यो मास्क शजदो च आगा दे सरे जरे न जोड़ो मास्क में इस्तेमाल किए गए सोने की कीमत आज के दौर के मुताबिक तकरीबन 11 करोड़ रुपए है एक मास्क बंदे चिस्सेम रसरजार सर्फ के दल दे एक कीमत किम वक्त शद किताब लिखला शवा व दी सब कड़ा दा 11 करोड़ शाही 11 करोड़ रुपए वे इवेलस करोड़ा रुपए वे बच्चों दगा खबरदार कई वड़ी कस की वेड़की मशमून मिस्र में 100 से ज़्यादा एहराम है यानी अवाला वड़ी की वेड़की खपल जोन पला मुतवज्जो कई वहीवा जरूर खबर और तशई चिप मिस्र से दसल नज़ियोत एहरामी नवी इनमें फिरौन खुफू का एहराम सबसे बड़ा है पदग शेजे दे फिरौन खुफू वाला एहराम वो आप टोल नज़ियोत स्तर वो इसकी ऊंचाई 44 मंजिला इमारत के बराबर है ओ दे दग वाला चिगवोला चिदा सलेरबंद सलवेश मंजिला इमारत वो इमरदा यानी देमरा यू विश इमारत चेवी चेग सलेरबंद सलवेश मंजिलेवी देमरा चिक इमारत देमरा दे एक एहराम बोला चिक बोला था 480 फीट ऊंचाई है सलेर सावा और अतियाप बंदे दे एक बोला चिक बोला था फुट 480 फुट ऊंचाई है सलेर सावा अतियाप बंदे दे एक बोला चिगवोला दा फुट पे हिसाब से इसमें लाखों पत्थर इस्तेमाल हुए और पत्थरों का वजन 2.5 टन है पर एक शेप लकावे कोणी इस्तेमाल शुवी दी व देवु कोणी वजन चदा आगा 2.5 टन दा 1000 किलो 1 टन के बराबर होता है और यो टन चदा दे एक वाला अंदाजा च लगावे बे आगा यो 1 किलो
وزن چې وګوره هغه یو ټن شمیر شي، یعنی 1000 کیلو وزن چې دا هغه یو ٹن شرسی۔ तहकीक करने वालों को आज तक मालूम नहीं हो सका कि मिस्र के लोग इतने भारी पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। खाल के 150 पाबंदे कड़ी दी और 1.5 तहकीक के पाबंदे कड़ा दा खोचा था ऐसा पेरे दा पता न दो लगे दलिए चिदिए देमरा गुट और देमरा वजनी कोणी देवु जोइना बुल जोइता सरंगे रसाउल। बास पत्थर 50 से 80 टन वजनी है। जना जना कोड़ियों को 2.5 टन्ना ज्योत 50 टन रसा और 80 टन रसा वजनी वो। आज के दौर में ऐसी कोई मशीन नहीं जो इतने भारी पत्थर उठा सके। पनन सबो पदोर शे दासे यो मशीना दे दखसड़ी पे इल्म शनश्ता दा चे देम रस्तर स्तर कोणी आगा चिक्की। एक बड़ी क्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 20 टन वज़न उठा सकती है। दखसाड़ी पखपल इन शे खबर शालिए दो चे टोल नस्तर क्रेन चे दा आगा 100 टन रसा वज़न चिगवाइशी। इस दा नक्श मक्श चे दा लोंदे लिकली दी वड़की वड़की द पर खबरें प्यारे बच्चों अवाल खपल तरफ ता दागा तहरीर कौले वाला वेड़की मुतवज्जो कई एहराम मशरूमों ने वेड़किए गौर सारा द खबर और वे एहराम में 4 दीवारें होती हैं पर एहराम से सलेर खंदक वी और हर दीवार की शक्ल समोसे की तरह तिकोन है और दे हर खंदक चेदा यग शक्ल चेदा ऐसा मुसे गुंदे द्रेगु जदा दीवार जिस बुनियाद पर कायम है इसकी शक्ल स्कोन अंग्रेजी लिख ली थी SDUARE सेनोरी सिनोरी। ये देखो चकोर को क्या बोलते सिनोरी? स्क्वायर दादा क्यों है ये? अच्छा स्क्वायर है शक्ल नखमो स्क्वायर लिदशो खुदाले चदा अरब अंग्रेजी में पढ़ाओ का बोला शक्ल चदा कसलेर कुश्ता जोड़दा स्क्वायर है। एहराम की इमारत का रुख शुमाल जुनूब की तरफ है। द एहराम बोला इमारत चो द एक बोला रुख शमाल और जुनूब लेरी पलदा शुमाल जुनूब ता पश्तेश सभी दमे चेरे गौर न दा कड़ा सोचवे का। इस रुख में ठंडी लहरें गर्दिश करती हैं। पदुख रुख से चिदा साड़े साड़े लहरें गर्दिश कई यानी देश में बोला ये लहरें शे में ऐसी कोई चीज़ दाखिल नहीं होने देती जो सड़न पैदा करे। दागा लहरें चिदी दस शाइप यगश एहराम से दाखिलाउल दे पोरा मानावी चिचेरे शाई खरोब की। यही वजह है कि एहराम में रखी जाने वाली चीज़ें ख़राब नहीं होती। दगा वजह दो चप एहराम से चिकिम शैना प्रोतो भी आगा खरोपेजिना और अनाज में कीड़ा नहीं लगता और पगने में शेल या पगले से चदा चिमजी ने पैदा केजी। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद वहाँ दफन फिरौनों की लाशें मिली है। पजरावे कोलवे नमक्षे इरेशाख दे फिरौनों ने बोला मड़ जिस्मीना प्रतदी दा किसी पद गज़ी बंदे ख़त्म शला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।